یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے چونکہ اسے پورے سال کے لیے جوائن کیا ہے، میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ ہمارا یہ سفر ایک سال کا نہیں ہوگا، ہم زندگی بھر کے لیے اب کنیکٹ ہو گئے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پروگرام کے بارے میں؟ اس پروگرام سے آپ نے سیکھا کیا؟ 12 کورسز ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ 12 باتیں مجھے بتا دیں۔ 12 نہیں بتا سکتے آپ 6 باتیں بتا دیں، 6 نہیں بتا سکتے سر آپ کوئی ایک بات بتا دیں جس نے آپ کی زندگی کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے۔ دیٹس گڈ سمپل۔ اور کوئی ایک سجیشن جو آپ دینا چاہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، اپنی بات کہنا چاہیں، تو میں حاضر۔ بڑا کچھ سیکھے ہم نے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اہم چیز تھی جو میں نے سب سے پہلے لرن کی وہ یہ تھی کہ سٹریس مینجمنٹ کا بڑا ایشو تھا کہ ہمارے معاشرے میں یا جو ہم آفسز میں لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ سٹریس بہت زیادہ تھی۔ تو اس کی 2-3 بیسک وجوہات جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لا علمی کی وجہ سے ہم کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں تھی۔ پھر ٹائم کو تھوڑا مینج کیا، پھر اس کے ساتھ سٹریس آٹومیٹکلی کچھ مینج ہو گئی۔ پھر چیزوں کو تھوڑا سا نارمل، یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ وہ ہری بری والی بات تھی، ہر کام میں جلدی جلدی جلدی۔ پھر یہ تھا کہ پیسے کے پیچھے دوڑے تھے، یعنی کہ اب جو ابھی آج والے سیشن میں بھی سر آپ نے بات کی کہ جو ہے نا وہ پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم اپنی ذات پہ وہ ہم کما تو بہت زیادہ رہے ہیں، اب وہ خرچ پتہ نہیں کس نے کرنا ہے، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ اکٹھا کر کے خود چلے گئے ہیں یا خود کسی ڈیزیز کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ کسی کام ہی نہیں آیا۔ تو وہ جو ہماری آنکھوں کے آگے پردہ تھا، جو ہمارے اندر ایک وہ سارا وہ زنگ لگا ہوا تھا، پہلے تو یہ بھی بات تھی کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ایسی نہیں تھی کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، پرپس کیا ہے، کس لیے جی رہے ہیں، کس لیے کما رہے ہیں، کس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تو بے شمار چیزیں لرن کی ہیں۔ سر میں بڑا مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا۔ بھٹو صاحب آپ نے بہت شکریہ، آپ کا بڑا پازیٹیو آپ کا فیڈ بیک ہے اور مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ جو میں نے آبجیکٹیو رکھا تھا، جو سوچ رکھی تھی، الحمدللہ ہم اس ڈائریکشن پر چل رہے ہیں۔ ابھی مزید بھی باقی دوستوں سے ہم رائے لیتے ہیں تو انشاءاللہ چیزوں میں اور بہتری آئے گی۔ سر سب سے پہلے یہ سیکھا ہے کہ سر اگر ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کر کے ہم لائف میں بہت ساری تبدیلی کر سکتے ہیں، ان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سر یہ چیز سیکھی ہے، اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو سر آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ سے سر سیکھی ہیں۔ یہ سر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ ضائع کیا سر۔ میں نے تقریباً سر سارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں، لوکل انٹرنیشنل ہر طرح کے، میں سب کو سنا ہے۔ موسٹلی میں تقریباً سر جاوید چودھری صاحب کی بکس بھی پڑھتا ہوں، ان کو ڈیلی بھی دیکھتا ہوں۔ وہاں سے آپ کا ایک کورس تھا ان کے ساتھ، وہ وہاں سے میں نے آپ کو سر دیکھا، سمجھانے کا، سکھانے کا، وہ سب سے سر الگ تھا۔ وہاں سے مجھے پھر آپ کی طرف، آپ کا چینل ڈھونڈا، آپ کی طرف آیا، وہاں سے پھر میں نے کورس جوائن کر لیا۔ باقی سر جو بھی فائنینشیل پرابلم تھی سب کچھ کیا، تو سر ایک لگن پیدا کر سر کی نا سر آپ نے، تو وہ سب کچھ راستہ خود بخود بنتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سر آگے بھی الگ کسی طرح کورس جو بھی آتے رہے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ اس کمیونٹی کو ایک یہ نہ صرف ہمارا لرننگ کا ریلیشن رہے گا، ہم اس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ارننگ کا بھی ذریعہ بنے۔ سر شوکت صاحب۔ جی یاسین شاکر صاحب السلام علیکم، اور سب دوستوں کو میری طرف سے عاجزانہ سلام۔ جی یاسین شاکر صاحب آپ بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اس کی ضرورت تھی جو آپ کام کر رہے ہیں نا۔ اس میں آپ اردو میں کچھ لوگوں کو انگلش اور سمجھنا مشکل تھا، تو آپ نے جو یہ ذمہ داری لی ہے نا کہ آپ اپنی زبان میں ان لوگوں کو اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، سوشل اویئرنیس ہو، ہیلتھ اویئرنیس ہو یا اور طرح کی یہ کی چیز ہے۔ بھی کافی کچھ لرن کرنے کا موقع ملا۔
बहुत अच्छा प्लेटफार्म है पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहूँगा। हम तो यूके में रहते हैं, तो यहाँ तो और भी कई तरह के प्लेटफार्म मिल जाते हैं, अगर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेसिबल है या नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो आप माशाल्लाह बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम इसको पूरी कम्युनिटी तक, मैं हमेशा ये कहता हूं ये प्रोग्राम 8.25 अरब लोगों की जरूरत है। अब उसमें से कितने लोग इससे फायदा उठाते हैं ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। अभी हमने 1000 बिजनेसमैन का इंटरव्यू किया है, सर्वे किया है। सर आप हैरान होंगे, सिर्फ 23% लोग लर्निंग के साथ अटैचमेंट रखने वाले मिले हैं, और उनमें से भी 7% लोग ऐसे हैं जो खर्च करने का हौसला रखते हैं, और उनमें से 5% लोग सिर्फ खर्च करते हैं। इमेजिन करें, बाकी 95% का कंसर्न ही नहीं है, वो अपनी जात पर, लर्निंग पर खर्च करने के तैयार ही नहीं है, पैसा है खर्च नहीं करते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के अंदर कम से कम ये चीजों को हम बेहतर कर सकें। अभी मैं लाड़काना गया हूं, तो कोई 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो छोटा सा बिजनेस है लेकिन 10 करोड़ का। अच्छा, 10 करोड़ के बिजनेस में वो कहते हैं कि सर उन्होंने बकायदा फीडबैक दिया कि हम 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी बात हमारे जहन में नहीं आई। और आप इमेजिन करें, उन्होंने अनाउंसमेंट पहली जिंदगी में ये की है कि हमारे पास काम करने वाले वर्कर्स, अगर उनमें से किसी को हादसाती मौत हो जाती है तो उसकी ज़्यादा को हम सैलरी देंगे उस पर्सन की। आप एक लोकल लेवल पे ये इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस आई है तो सोच ही बदल गई। जी थैंक यू वेरी मच। तो सर अहमद जलकरनैन साहब, मुझे ये कोर्स करने के बाद जो कंसिस्टेंसी थी ना, जो कहीं ब्रेक होती थी, हम जज्बात में आ जाते थे, उखड़ जाते थे और एक जज्बात के रूप में थे, तो अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल हुई जब आप जैसी मेच्योर शख्सियत देखी। और गालिब गुमान यही है कि आपके साथ मजीद जिंदगी का साथ रहेगा तो और चीजें सीखेंगे। आप माशाल्लाह मेंटोर हैं, और इसका शर्फ मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे आप तक पहुंचाया। खैर वो गायब हो गए बीच से, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मेरा आपके साथ कंसिस्टेंस ये शो करता है कि मुझे कुछ मिल, और का सफर इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो एक जो आपसे मुझे उनसीयत है ना, ये जो कोर्स के अटैचमेंट के साथ, ये बहुत एक लेता हूँ। अभी लास्ट में एक जगह था, IOBA में एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ में किसी हवाले से मैं AI जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेज डिजाइन हो रहे हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2-3 यूनिवर्सिटीज में मेरे कुरिकुलम डिजाइन हो बकायदा, और वो पढ़ाने के लिए रेडी है। तो वहां भी मैंने थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया। तो सर ये कि मतलब आपका नाम जुबान पे आ ही जाता है कहीं पे भी होता है। तो सर ये एक मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अभी तक आपसे अटैच्ड हूँ। आप भी मतलब हमें समझते हैं, हमें बर्दाश्त करते हैं। और मैं सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि उस्ताद को भी गुस्सा आता है लेकिन उस्ताद बर्दाश्त करता है। मैं भी कुछ ना कहीं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरा स्टेमिना आपको देख के मजीद डबल हो रहा है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब सारे हमारे लिए बाइज्जत कहते हैं कि एज अ लर्नेड समझ लें कि सब लोग यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आप जिस प्यार से चीजों को आगे की तरफ ले जाते हैं सर, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। शायद हम इससे बहुत आगे चले जाए। तो ये सारी ट्रेनिंग का जो निचोड़ अगर मैं निकालूं तो इल्म है, जैसे इल्म है तो हिल्म है ना सर, वही वाली बात है ना। उर्दू में अगर खालिस उर्दू में बात करें, नॉलेज है तो कुछ भी है, हिल्म। तो ये अल्लाह ताला ने सिफात दी है इंसानों में, पहले इंसानों से इंसानों में माशाल्लाह, जो आप इंसानों से अंदर जो तक, ये सर ये आप ही है जो अभी तक का निचोड़ है सर, वो जानकर ये सादा लफ्ज में सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपकी सारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपका ये हुस्न ज़न, हुस्न नज़र और हुस्न तवक्कुआत कायम रहे, और अल्लाह हमें इससे बेहतर काम करने की तौफीक दे। आमीन सर, सुम आमीन सर। इंशाल्लाह सर, मैं साथ हूँ आपके सर, इंशाल्लाह हर सफर में इंशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे। सलाम अलैकुम। जी सर, आतिफ जावेद साहब। सर मैं समझता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करके ना, मैंने जो डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई है जो कोर्स को ज्वाइन करके, और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे फायदा जो हुआ है ना, जैसे मैंने
पहले तो कोई जिंदगी का रब्त ही नहीं था उसमें। अभी क्या है कि गोल सेट कर लिए हैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई अभी कैसे किस ट्रैक पे चलना है, कुछ ट्रैक समझ आई है कि कैसे करना है। और दूसरा स्पेशली जो अभी लास्ट सेशन हुआ था इसका लव लैंग्वेज का सर, एक्चुअली मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, अभी पता चला कि हमारा जो ना लव लैंग्वेज दोनों की डिफरेंस थी। अभी जाके समझ आई कि हाँ यहाँ पे रहना था। अभी तक सर खपाते रहे समझो। और जी जी, और सर दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें जो डिसीजन किस तरह करना है, वो जिस तरह मैंने समझाया कि अर्जेंट है जो उसको कैसे रखना है, इम्पोर्टेंट को, वो इन चीजों से बड़ा फायदा हुआ। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आपके माशाल्लाह बड़ा पुरजोश फीडबैक है आपका। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इससे बड़ा फायदा हुआ। और अल्टीमेटली ये जो 20 साल टकरे मारते रहे, कम से कम अब टकरे नहीं मारेंगे। ये प्रोफेसर याहिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका बख्शा है मुझे। जी, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक अरसा से मेरी सोच थी मैं बहुत जल्द ग्रो करूं और आगे जिंदगी में बढ़ूं, बहुत सोच थी। तो बहुत आपका शुक्रिया, आपकी वजह से अब मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ आप जैसे एक फरिश्ते की हैसियत से हमारे जिंदगी में आए, हमारे सामने आए। तो फरिश्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अल्लाह ताला काम बंदों कैसे होते हैं अल्लाह ताला रहनुमाई करता है। तो बाकी सीखने के वाले से मेरा ये अमल रहता है कि जो आप बातें बताते हैं तो मैं अमली तौर पर उस तरह के जब लोगों को देखता हूँ, मतलब होशियारी चलाकी के हम ले लें, जो लोग माइंड लिहाज से बहुत तेज होते हैं, तो जो आपने उसके अंदर सेशन के अंदर बताया हुआ मसलन कि आप अखरोट खाएं, गेम्स खेलें और अपने आप को टाइम दें, अपने आप को अव्वल तरजीह दें, तो इस तरह के लोगों को जब मैं देखता हूँ अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे, तो फिर मुझे अपनी बातें याद आती हैं और दिल के अंदर यकीन पैदा होता है, हाँ ये जो सर ने मुझे बताया ये लोग ये इसी को फॉलो कर रहा है, मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए। और मुझे वो चीज़ मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा करती है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे, आपके जो भी विजन है, मकासद हैं हमारे बारे में, अपने बारे में, अल्लाह ताला उसको कामयाबियों से पूरा फरमाए और आपको पाकिस्तान का नंबर 1 और ऐसा इंसान बनाए कि पाकिस्तान के अंदर एक आपकी मिसाल दी जाए कि जो काम इन्होंने किया, मतलब पाकिस्तान के तारीख में ऐसे कम ही लोग गुजरे जिन्होंने ये काम किया। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आप कुछ आमीन। अल्लाह आपके लिए भी ये दुआ कबूल फरमाए और हम सब के लिए कबूल फरमाए, क्योंकि हम सब एक मकसद के तहत आए हैं और हम सब अपना अपना मकसद अदा करके इस दुनिया से जाएं, तो दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह 8 तारीख से हमारा नेक्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है और उसमें आपसे मुलाकात होगी। बड़े जबरदस्त कोर्स हैं ये भी, हर महीने हर कोर्स ही जबरदस्त है। जिस कोर्स को भी हम हाथ लगाते हैं वो कोर्स एक से बढ़कर एक है। और ये अल्लाह का करम है, मैं हमेशा शुरू से मेरा पब्लिक स्पीकिंग के साथ रिलेशन है, तो मैं ये कहता होता हूँ जब भी किसी ऑडियंस से गुफ्तगू करता था, आज भी कहता हूँ कि मेरे जो अल्फाज हैं ये आपका नसीब है, तो हमारे कोर्सेज आपका नसीब है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं। जो चीजें भी हम लेकर आते हैं वो आपके नसीब अच्छे हैं, इसीलिए कंटेंट अच्छा है। तो अल्लाह ताला आपको मजीद अच्छे नसीब वाला बनाए, बरकत हो, खुशहाली हो, तरक्की हो। और अल्लाह करीम हम जितने लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाएं, हम सबको अल्लाह ये तौफीक दे कि हम पाकिस्तान में जो चेंजेस आनी चाहिए, जो बेहतरी आनी चाहिए, पहले हमारी जात में आए, फिर हम लोगों के लिए वो पैदा कर सकें और इस तरह हमारी कम्युनिटी एक खूबसूरत कम्युनिटी बने, पुरसकून कम्युनिटी बने। यकीन कीजिए अल्लाह ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतें हैं जितना भी हम शुक्र करें, यकीन करें उतना शुक्र कम है। हम बड़े पुरसकून लोग हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं, बड़ा कुछ अल्लाह ने हमें दे रखा है, सिर्फ 2 चीजों की कमी है। नंबर 1 एहसास हम कर नहीं पा रहे, नंबर 2 शुक्र नहीं कर पा रहे। अगर ये हम कर लें, यकीन कीजिए माला माल है हमारी चीज से, और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम एक बड़ी कम्युनिटी डेवलप करने में कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए हम 100 200 400 लोग, तब्दीली के लिए एक शख्स भी काफी है। वो हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए, एक शख्स ही काफिला है मुझे, तो हम तो बड़े सारे लोग मिल गए हैं। इंशाअल्लाह मेरा कभी यकीन है अल्लाह ताला की जात पर कि हम उस तब्दीली का बाइस बनेंगे।
اپنی ذات میں، اپنی فیملیز میں، اپنی کمیونٹی میں اور ملک پاکستان میں، اور انشاءاللہ ہماری وجہ سے اس کا امیج بہت بہترین ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ سب اس کے گواہ ہوں گے، ایسا ہو کر رہے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کورس میں. اللہ حافظ.